یہ صحرا بھی بالآخر اختتام پذیر ہوا اور پھر سامنے ایک گھنا جنگل نظر آنے لگا۔ فضا میں دن کا اجیالہ غروب ہونے لگا تھا اور اس کی جگہ رفتہ رفتہ اندھیاروں کے بھوت اتر رہے تھے۔ میں نے اپنے چلنے کی رفتار تیز کر دی۔ یہ گنجان جنگل عجیب و غریب درختوں، پھلوں، پودوں اور جنگلی بیلوں سے اٹا پڑا تھا۔ مجھے خود ان کے درمیان سے راستہ بنا کر آگے بڑھنا پڑ رہا تھا۔ میں رات ہونے سے پہلے یہ جنگل عبور کر کے اس پہاڑی تک پہنچ جانا چاہتا تھا جس کی دوسری طرف عطاشی قبیلہ آباد تھا، مگر آغروب کی ہدایت کے مطابق مجھے 100 قدم پہاڑی کے متوازی آگے بڑھنا تھا۔ جنگل گھنا اور گنجان ہونے کی وجہ سے اندھیری کی زد میں تھا۔ میں اپنے طے شدہ راستے پر آگے چلا جا رہا تھا۔ سنان میرے ہاتھ میں تھی، کمان میرے بائیں کندھے پر اٹکی ہوئی تھی، جبکہ تیروں سے بھرا ترکش میری پشت سے بندھا ہوا تھا۔ جنگل میں عجیب سی خاموشی اور سناٹا طاری تھا۔ میرے دل کو جانے کیوں انجانے خوف نے جکڑ لیا تھا۔ مجھ پر جنگل کے ویران اور خوفناک ماحول کی آس سے بھی سراسیمگی طاری ہونے لگی۔ میں خود اپنی اس یکدم اور خود بدلتی کیفیت پر حیران تھا، حالانکہ میں اس سے بھی زیادہ آسیبی اور خوفناک ویرانوں اور تاریک جنگلوں سے گزرا تھا، مگر جانے کیوں اس جنگل سے گزرتے ہوئے آپ و آپ میرے اندر ہیبت ناکی اترنے لگی، جسے باوجود کوشش کے میں ذہن سے جھٹک نہ سکا۔ پھر میں چلتے چلتے رک گیا اور اپنی کیفیت پر ذرا غور کرنے لگا۔ آخر ایسا اچانک کیوں ہو رہا تھا؟ اس پراسرار جنگل کے ماحول میں داخل ہوتے ہی کیوں میرا دل و دماغ ایک انجانے سے خوف میں جکڑنے لگا تھا؟ جب خوف رفتہ رفتہ میرے دل پر حاوی ہونے لگا تو میں پریشان ہو گیا، اور تب پھر مجھے اچانک پیر کمالی شاہ کے تعویذ کا خیال آیا جسے میں نے دائیں بازو سے باندھ رکھا تھا۔ میں نے آستین اٹھا کر اسے چوما اور چند آیہ کریمہ کا ورد کیا تو پھر جا کے کہیں میرے دل کا خوف کچھ کم ہوا، مگر باوجود اس کے مجھے ہلکی سی گھبراہٹ ہو رہی تھی، تاکہ دوسرے ہی لمحے میں نے اللہ کا نام لے کر قدم آگے بڑھا دیے۔ دفعتاً ایک کریح اور غیر انسانی چیخ ابھری اور گویا جنگل کے سرے سے لے کر دوسرے سرے تک گونجتی چلی گئی۔ میرا وجود اس اچانک ابھرنے والی غیر انسانی ہیبت ناک چیخ پر لرز اٹھا۔ میں رک گیا۔ چیخ کی سمت میں نے نظریں گاڑی ہوئی تھی، مگر وہاں تاریک جھنڈوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ تب پھر مجھے مذکورہ جھاڑیوں میں ہلکی سی سرسراہٹ محسوس ہوئی۔ اچانک میری چھٹی ہی اس نے خطرے کا الارم بجایا۔ میں نے جلدی سے کسی ممکنہ خطرے کے پیش نظر سنان تان لیا اور نظریں بدستور جھاڑیوں پر مرکوز رہنے دی۔ اگلے ہی لمحے سرسراہٹیں بڑھ گئیں اور پھر مان ہی میں نے ایک جھرجھرے سے عجیب الخلقت جانور کو ایک چنگھاڑ مارتے ہوئے نکلتے دیکھا۔ وہ ریچھ نما جانور تھا، بہت قوی ہیکل اور بھاری بھرکم۔ اس کے جسم پر بال ہی بال تھے، آنکھیں سرخ انگارہ تھی۔ وہ اپنے چاروں ہاتھوں پیروں سے کسی بدمست شکم سے ریچھ کی طرح ہی جھومتا جھماتا میری طرف دوڑا چلا آ رہا تھا۔ اس کے بڑے بڑے خونخوار شکاری دانت اس کی لمبوتری اور بدہیت بانچھوں سے جھانکتے ہوئے بڑے خوفناک نظر آ رہے تھے۔ میں فوراً سنان سنبھالے چوکس کھڑا ہو گیا۔ وہ جیسے ہی ڈولتا ڈولتا میرے قریب آیا، میں نے سنان اس کے بالوں بھرے سیاہ پہلو میں گھونپ دی۔ اس کے حلق سے خارج ہونے والی چنگاڑ بڑی بھیانک تھی۔ اس نے اپنے دائیں ہاتھ کے نوکیلے زخم دار ناخن کا پنجہ چلایا جو میرے دائیں شانے کو گھائل کر گیا۔ میں دور جا گرا۔ سنان میرے ہاتھوں سے چھوٹ گیا۔ اس کے پہلو سے خون بہنے لگا تھا۔ شکر تھا کہ مجھے اس کے خونی پنجے نے کچھ زیادہ گھائل نہ کیا، مگر پھر بھی مجھے اپنے زخم میں جلن آمیز ٹیسیں اٹھتی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے متحوش نظروں سے اس بدہیت مگر خوفناک عفریت کی طرف دیکھا تو وہ ایک بار پھر وحشیانہ انداز میں چیختا چنگھاڑتا میری طرف دوڑا چلا آنے لگا۔ سنان میرے ہاتھوں سے نکل چکا تھا، مگر میں نے پھرتی سے لیٹے ہی لیٹے کمان سنبھالے پشت کی طرف بصرت ہاتھ لے جا کر ترکش سے ایک تیر نکالا اور اسے چلے پر چڑھاتے ہی اس کی بدہیت شکاری دانتوں والے تھوتنے کا نشانہ لے کر تیر چھوڑ دیا۔ تیر سرسناتا ہوا نکلا اور بجائے اس کے تھوتنے میں پیوست ہونے کے اس کی گردن میں پیوست ہو گیا۔ اس نے پھر دل دہلا دینے والی چنگھاڑ ماری۔ میں نے پھرتی سے دوسرا تیر چلے پر چڑھا دیا۔ اس بار میرا نشانہ خطا نہیں گیا تھا، وہ سیدھا اس کے بدہیت تھوتنے پر پیوست ہو گیا۔ اس بار پہلے سے زیادہ دہلا دینے والی اس کی چنگھاڑ نے مجھے بھی سرتپا لرزا کر رکھ دیا تھا۔ میں نے تیسری بار ترکش سے تیر نکال کر چلے پر چڑھایا تو وہ وحشی درندہ لڑکھڑاتا ہوا گرا اور زمین بوس ہو گیا۔ اس کا بدہیت تھوتنا خون آلود ہو گیا تھا۔ اس کا وجود اب دھیرے دھیرے ہانپتا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے جلدی سے آگے قدم بڑھا دیے۔ میں تاریک جنگل سے اب جلد از جلد نکل جانا چاہتا تھا۔ جانے اور کتنے خونی اور وحشی درندوں سے بھرا پڑا تھا یہ جنگل، اسی لیے اب میں ذرا تیز تیز چل رہا تھا۔ میں نے چلتا وقت اپنا سنان سنبھال لیا تھا۔ کافی آگے نکل آنے کے بعد اچانک مجھے جنگل کے خوفناک سناٹے میں کسی رونے کی آواز سنائی دی۔
मैं उस आवाज को सुनकर ठिठक गया और चलते चलते एकदम रुक गया। मेरे कदम जैसे जमीन ने पकड़ लिए। मैं सर तापा समात बन गया था। वो रोने की आवाज किसी औरत की थी। मैंने जरा हिम्मत से काम लिया और आवाज की सिमत कदम उठा दिए। रोने की आवाज सामने की तरफ से आ रही थी। मैं जरा आगे पहुंचा तो मुझे सामने एक दहकता अलाव नजर आया। वो एक कढ़ा था जिसके अंदर से शोले उठ रहे थे। उस जलते दहकते घड़े से चंद कदमों के फासले पर मुझे एक जवान औरत नजर आई। उसने समोरों का जंगली लिबास पहन रखा था जो उसके पुरशबाब बदन पर नाकाफी नजर आ रहा था। जवान औरत का रंग तांबे की तरह आग के शोलों की हिद्दत से दहक रहा था। उस औरत के करीब एक दूसरा इंसानी वजूद भी बेसुध पड़ा था। उसने सिर्फ पेट से नीचे सतरपोशी कर रखी थी जो किसी जंगली जानवर की खाल थी। जाने ये क्या पुरस्कार चक्कर था। मैं वहीं झाड़ियों की तारीक आड़ में दम साधे पड़ा ये मंजर देख रहा था। वो जवान औरत मातमी अंदाज में नोहा के ना थी और बार बार अपने करीब धरे बेसुध वजूद को भी सोगवार नजरों से तकी जा रही थी। वो किसी मर्द का नीम बरहाना जिस्म था। शायद उस औरत का खावंद ही था, मगर मैंने बगौर देखा उसका मर्द जिंदा था और मुंह खोले हौले हौले हाँपने के अंदाज में सांसें ले रहा था। फिर अचानक घड़े के भड़कते शोले मजीद बुलंद हो गए और उनकी हिद्दत बढ़ने लगी। दूसरे ही लम्हे मैंने उन भड़कते शोलों से अजीबुल खल्कत मखलूक को निकलते देखा। वो कुल 6 थे। उनकी कमर पर कुब निकले हुए थे। चेहरे सूखे और लंबूतरे थे। नाक लंबी और गिद्ध की चोंच की तरह मुड़ी हुई थी। वो सब सरहना थे। उनके जिस्मों पर बराए नाम गोश्त था, बल्कि उनके बराए नाम गोश्त पोत से हड्डियां यूं साफ वाजे थी जैसे ये ढांचे हो। वो सब गड्ढे से बाहर निकलकर उसके गिर्द वहशियाना रक्स करने लगे। वो जवान औरत उनको देखकर बुरी तरह दहशतज़दा नजर आ रही थी। मुझे शोलों के गिर्द नाचती हुई ये मखलूक जहन्नुमी बलाएं नजर आ रही थी। वो औरत उन्हें देखते ही कई कदम पीछे सरक गई थी। फिर दूसरे ही लम्हे उन 6 की 6 जहन्नुमी मखलूकों ने जमीन पर पड़े बेसुध इंसान को उठाया और मेरे देखते ही देखते उन्होंने इस वजूद समेत गड्ढे में छलांगे लगा दी। जंगल में एक हौलनाक चीख उभरी। ये शायद उस बदनसीब इंसान की आखिरी चीख थी जिसे पकड़कर जहन्नमी मखलूक आग के गड्ढे के अंदर कूद गई थी। फिर अगले ही लम्हे मैंने उस जवान औरत को दीवानावार आग के गड्ढे की तरफ दौड़ते देखा। वो शायद आग में छलांग लगाने वाली थी। मैं जल्दी से तारीक झाड़ियों की ओर से निकला और दीवानावार दौड़ता हुआ उस औरत से लिपट गया। मुझे उसे पकड़ने में जरा भी देर हो जाती तो वो आग के अंदर कूद चुकी होती। मैं उसे मजबूती से अपनी बाहों के हिसार में काबू किए शोला फिशा गड्ढे से दूर ले गया। वो मुझे देखकर एक लम्हे को मबहूत से रह गई। पता नहीं वो मेरी जबान समझती भी थी या नहीं, लेकिन मैंने उससे कहा कि ऐ लड़की, कौन है तू? होश में आ, क्यों अपनी जान की दुश्मन बन रही है? मेरी बात सुनकर उसका मुंह खोले का खुला रह गया। फिर मैंने उसे खुद से अलहदा कर दिया। उसने एक अफसुर्दा सी निगाह गड्ढे पर डाली और एक बार फिर फूट फूट कर रो दी। वो मेरी जबान नहीं समझती थी और यकीनन फिर उसकी जबान मेरे लिए अजनबी ही साबित हुई। इसी असनाए राह में गड्ढे में भड़कते हुए शोले बतदरीज सट पड़ने लगे और बिलाखिर मांद होकर बुझ गए। लड़की ने अजनबी जबान में मुझसे कुछ कहा। मैंने इशारों की बैनुल अक़वामी बोली का सहारा लेते हुए नफी में सर हिलाया। वो खामोशी से बगौर मेरे चेहरे का जायजा लेने लगी। उसका पुरशबाब बदन मेरे सामने था, मगर वो अपनी नीम बरहंगी से बेनियाज मुझे तकी जा रही थी। मैंने इशारे से पूछा, ये सारा चक्कर क्या था? उसने दोनों हाथ के मखसूस इशारों से मुझे बताया कि वो बदनसीब नीम बेहोश शख्स उसका शौहर था और उसे इस कबीले के लोगों ने आग देवता के खब्बीस पुजारियों के हवाले कर दिया था, क्योंकि उनके एक बड़े साहिब ने किसी बड़ी मुसीबत से बचने के लिए एक इंसान की भेंट चढ़ाने के लिए कहा था। मैंने सोचा कहीं इस औरत का ताल्लुक उस बदबख्त अताशी कबीले से तो ना था, मगर मैं उससे किस तरह पूछता। मैंने उससे इशारों से पूछा कि मैं उसे उसके कबीले तक छोड़ाऊं। उसने बड़े नफरत अंगेज अंदाज में जोर जोर से अपना सर नफी में हिलाया। मैं अजीब मुसीबत का शिकार हो गया था। बिलाखिर मैंने उसे वहीं छोड़ने का फैसला किया और आगे बढ़ गया। अभी मैं जरा कदम आगे ही बढ़ा था कि मुझे अपने उक़ुब में किसी के आने का एहसास हुआ। मैंने चलते चलते मुड़कर देखा तो ठिठक गया। वो औरत मेरे ही पीछे पीछे चली आ रही थी। मैंने रुकने के बजाय उससे जान छुड़ाने की खातिर दौड़ना शुरू कर दिया, मगर मैंने देखा कि वो जंगली औरत भी मेरे उक़ुब में बदस्तूर दौड़ी चली आ रही है। नाचार मैं रुक गया। वो भी मेरे करीब आ गई और इशारे से मुझे बताया कि वो भी मेरे साथ जाना चाहती है। मैंने इससे इशारे से उस अताशी साहिर खातून का हुलिया बनाकर बताया कि मैं उसे कत्ल करने जा रहा हूँ। मेरा इशारा भांप कर यकदम उसके हसीन चेहरे पर जोश इंतकाम की सुर्खी ऊद कर आई। उसने जोर जोर से सर हिलाते हुए इशारों से बताया कि वो भी उससे अपने बदनसीब शौहर का इंतकाम लेना चाहती है। मैंने इशारों की जबान में उसे साहिर खातून के माबिद के बारे में पूछा तो उसने मुझे अपने पीछे का आने का इशारा करके यकदम तेज तेज कदमों से एक तरफ को चल पड़ी और मैं उसके उक़ुब में चलने लगा। खासी देर बाद जंगल का इख्तिताम हुआ तो सामने एक ऊंची पहाड़ियों का सिलसिला शुरू हुआ।
वो पहाड़ी की मुतवाजी सिमत चलने लगी, फिर एक अंधेरी दरार में दाखिल हो गई। इस संगलाख अंधेरी दरार में दाखिल होते ही उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ इंतहाई नर्म मुलायम था। मैं उसके गुदाज हाथ की गर्मी महसूस करता हुआ अंधेरी संगलाख दरार में चलने लगा। बल खाती हुई ये दरार बहुत तंगो तारीख थी। कई बार मुझे चटानी पत्थरों से ठोकरें भी लगी थी और मैं गिरते गिरते बचा था, मगर इस जांगलू औरत ने मुझे संभाल लिया था। ये चटानी दरार खासी तवील साबित हो रही थी। खासी देर बाद दरार का मुद्दम सिरा दिखाई दिया। फिर हम दरार के इस नीम रोशन सिरे पर पहुंचकर जरा रुक गए। सामने दाएं जानिब यही पहाड़ी सिलसिला कौस की सूरत बल खा रहा था। इस जगह से जरा फासले पर मुझे एक पहाड़ी माबद खाना नजर आ गया, जो ज्यादा बड़ा न था। वो मीनार की शक्ल का था और उसे बड़ी महारत से पहाड़ी के संगलाख बतन को चीर कर बनाया गया था। गोया अब ये मीनार नुमा माबद पहाड़ी से मुंसलिक नजर आ रहा था। उस जंगली नीम उरिया औरत ने मुझसे सिनान छीनने की कोशिश की। मैंने उसे घूर कर उसका हाथ झटक दिया। वो शायद अपने शौहर के कातिल गागून साहिर का ठिकाना देखकर जोश इंतकाम से मगलूब होने लगी। मैंने उसे इशारे से सब्र की तलकीन की। फिर सर कटे सिपा सालार आगरूब के कहने के मुताबिक मैंने उसे इशारे से समझाया कि गागून साहिर को हलाक करना मामूली बात नहीं है। जब तक वो रात में अपनी रूह एक चिंगादड़ में हलोल नहीं कर लेता, तब तक हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो खामोश हो गई, मगर हकीकत ये थी कि मुझे इस औरत से धड़का ये लग गया था कि कहीं ये कमबख्त अपने जोश इंतकाम में मेरा खेल ही न बिगाड़ दे। चुनाचे मैंने उसे वहीं छुपे रहने की तलकीन की। वो मेरा इशारा समझकर नीम रजबंदी वाले अंदाज से खामोश तो हो गई, लेकिन उसके चेहरे से तरद्दुद साफ आया था। बाहर कैफ में उसे वहीं छोड़कर पहाड़ की पथरीली दीवार के साथ चिपका हुआ माबद की तरफ पड़ने लगा। अंदर से मैं घबरा भी रहा था कि कहीं इस बदबख्त गागून साहिर को मुझ पर जरा भी शक हो गया तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसीलिए मुझे बेहद मोहतात रहने की जरूरत थी। चुनाचे में गिरदोपेश पर निगाह रखे मोहतात अंदाज से आगे बढ़ने लगा और बिला आखिर जरा ही देर में माबद खाने की बगली दीवार के साथ चिपक कर खड़ा हो गया। रात का जाने कौन सा पहर था। मैं चंद सानिये दम वहीं खड़ा रहा। इसके बाद मैंने इतराफ का जायजा लिया। इस चट्टान गिर माबद पर हैबतनाक सन्नाटों ने डेरा डाल रखा था। हर सू पुरस्कार भरी खामोशी का राज था। मैंने जरा सर उठाकर ऊपर देखा। मेहराबी संगी दरीचे बंद थे। माबद की चोटी पर चमगादड़े गंभीरियां भर रही थी। मैं सोचने लगा कि अब कम से कम इनका निस्फ पहर गुजर ही चुका था। जरूर गागून साहिर अपनी रूह चिमगादड़ में हलूल करने के बाद बेसुध पड़ा सो रहा होगा। आगरूब की हिदायत के मुताबिक मुझे सोए मुर्दा पड़े गागून पर वार करने के बजाय सपीदा सहर नमूदार होने से पहले इस चिमगादड़ का इंतजार करना चाहिए था, जो गागून साहिर के अमल करने के मुताबिक ठीक वक्त पर वहां पहुंचकर जैसे ही गातमून के बेसुध वजूद के सीने से चिमट जाती है। मुझे सिनान घूमकर उसे हलाक कर डालना था। लिहाजा मैं हिम्मत करके आगे बढ़ा और बिलाखिर माबुद के संगी दरवाजे के करीब पहुंच गया। दरवाजा बंद था। मैंने धड़कते दिल के साथ उसके चौबी पट को अंदर धकेला तो वो किराह आमेज चिड़चिड़ाहट के साथ अंदर की तरफ खुलता चला गया। अंदर मध्यम रोशनी में मुझे एक चक्करदार संगी जीना ऊपर जाता नजर आया। मैंने अंदर कदम रख दिया, फिर आहिस्ता आहिस्ता जीना तय करने लगा। ऊपर पहुंचा तो खुद को एक बड़े से हॉल में खड़े पाया। सामने निगाह पड़ी तो बुरी तरह ठिठक गया। क्या देखता हूं कि वस्त में एक मुस्ततील से पथरीले चबूतरे पर एक लंबा तड़ंगा सा काला भजंग शख्स पुश्त के बल दोनों हाथ सीने पर रखे महवे ख्वाब था, मगर नहीं, वो तो महज एक लाश थी। गागून साहिर अबदी नींद में मुस्तगरक था। वो एक अमले तनासुख के जरिए अपनी रूह चिमगादड़ के अंदर हलूल करके लाश की मिसल बेसुध लेटा पड़ा था। मैंने खामोशी से गोल सी चार दीवारी का जायजा लिया तो सिवाय एक दरीचे के सब बंद थे। मैं फौरन समझ गया कि ये दरीचा चिमगादड़ के आने जाने के लिए ही खोल रखा था। गोया अब मुझे उधर ही किसी खुफिया गोशे में छुप कर इस चिमगादड़ का इंतजार करना चाहिए था। लिहाजा ये सोचकर मैं निस्बतन एक तारीक गोशे में छुप कर बैठ गया। एक एक लम्हा भारी सिल की तरह से रख रहा था। मेरी ठिटकी हुई नजरें दरीचे पर जमी हुई थी, जहां से मकदूर भर तारीक खला नजर आ रहा था। अब मुझे बेचैनी से सपीदा शहर के नमूदार होने का इंतजार था। फिर जैसे एक एक पल सदियों की तरह गुजरते गुजरते गुजर ही गया। मेहराबी दरीचे से बाहर तारीक खलाब रफ्ता रफ्ता मलगजा होना शुरू हो गया था। इसके बाद दिन की रोशनी में ढलने लगा। मेरे सीने में दिल की धड़कनें तेज होने लगी और निगाहें बदस्तूर मेहराबी दरीचे पर अटक कर रह गई थी। अब किसी भी लम्हे वो चिमगादड़ जो गागून साहिर को नींद से बेदार करने के लिए नमूदार हो सकती थी। पूरे माहौल पर यकखल्त अजीब सा सन्नाटा छा गया था। तब फिर अचानक एक आहट पर मैं ठिठक सा गया।
मगर ये आहट उस मेहराबी दरीचे से नहीं उभरी थी जिधर मेरी निगाहें कड़ी हुई थी, बल्कि ये पुरस्कार आहट मुझे जीने की तरफ से आती सुनाई दी। मैंने जैसे ही चौंक कर जीने की तरफ देखा तो उसी लम्हे मुझे दरीचे की तरफ फड़फड़ाहट की आवाज सुनाई दी थी। जीने से निगाह हटाकर मैंने दरीचे की तरफ देखा तो एकदम मेरी रगों में खून की गर्दिश तेज हो गई। एक चमगादड़ जीने से अंदर दाखिल हुई और फिर मेरे देखते ही देखते वो मुस्ततील चबूतरे पर गागून साहिर के तराज बेसुध वजूद के सीने से चिपट गया। मैंने सनान संभाल ली, मेरी सांसें तेज तेज चलने लगी। मैंने अपने दिल की बेतरतीब धड़कनों पर काबू पाया और जैसे ही सनान संभाले ओट से निकला तो अचानक जीने की तरफ से मैंने उस जांगली हसीना को देखा। मेरा दिल उछलकर हलक में आ अटका। वो जोश और गुस्से से मगलूबुल गज़ब होकर चबूतर पर पड़े गागून साहिर की तरफ दौड़ी और मेरे पहुंचने से कबल ही उसने उसके करीब पहुंचकर उसका गला दबोच लिया। चिमगादड़ एकदम घबरा कर फड़फड़ाया। मेरा दिल धक से रह गया। उस जांगली लड़की की नादानी से अगर वो चिमगादड़ वापस चला जाता तो मेरे लिए मुश्किल खड़ी हो सकती थी। मैंने चिमगादड़ को फड़फड़ा मार कर गागून साहिर के सीने से अलग होते देखा तो जल्दी से मैंने सनान फेंक कर 3 कमान पकड़ लिया और चिल्ले पर तीर लगाकर उड़ते हुए चिमगादड़ का निशाना लेकर तीर छोड़ दिया। मेरा निशाना खता नहीं किया था। तीर लगते ही चिमगादड़ बारीक सी सीख निकालकर फर्श पर आन पड़ा। मैं जल्दी से सिनान संभाल कर तड़पते हुए चिमगादड़ की तरफ बढ़ा, फिर सिनान मारकर उसे छलनी कर दिया। उसके देखते ही मैंने देखा कि चबूतरे पर पड़े गागून साहिर का बेसुध वजूद बुरी तरह तड़पने लगा और बिलाखिर ठंडा पड़ गया। मैंने उस जनूनी हसीना को बाजू से पकड़कर गागून साहिर के मुर्दा वजूद से अलहदा किया और इशारे से उसे फौरन यहाँ से निकल जाने को कहा और फिर मैं अपना तीर कमान और सिनान संभाले उस जांगली औरत का हाथ पकड़े जीने की तरफ दौड़ा। माबद से बाहर आया तो तेज और तूफानी हवाओं के झक्कड़ के साथ करीख चीखें भी गूंज रही थी और करबनाक अंदाज में मातमी शोर भी गूंजने लगा। मैं उन शैतानी चीखों की परवाह किए बगैर उस जांगली औरत का हाथ पकड़े पहाड़ी दरार की तरफ दौड़ पड़ा, मगर हर दरार में दाखिल होते ही मुझे अपने वक़ुब में लोगों का शोर सुनाई दिया। मैंने ठिठक कर मुड़कर देखा तो धक से रह गया। उन लोगों ने मशलें और सनान संभाले हुए थी। यकीनन नताशी कबीले के लोग थे जिन्हें शायद अपने अजीम साहिर की मौत का पता लग चुका था और अब इस खतरनाक सूरत हाल में उनके हत्थे चढ़ने का मतलब हमारी इबरतनाक मौत था। वो औरत भी दहशत ज़दा सी थी। मैं उसे लेकर अंधेरी दरार में दाखिल हो गया और बेतहाशा दौड़ लगा दी। जांगली औरत अब मेरे साथ थी। हम दोनों अब तारीक जंगल में आ गए थे, मगर रुके हम फिर भी नहीं थे और मुसलसल तेज तेज कदमों से दौड़े जा रहे थे। वो औरत भी खासी सख्त जान थी। काफी दूर जाने के बाद हम दोनों जरा सस्ताने के लिए एक जगह रुक गए। जंगल की तारीक फिजा में अब दिन की रोशनी फैलने सी लगी थी। वो औरत मेरी तरफ अजीब मसहूर कुन नजरों से देखी जा रही थी। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखों में मेरे लिए तौसीफ और ममनून भरे जज्बात हिलकोरे ले रहे थे। वो जैसे मेरे हाथों अपने बदनसीब शौहर की कातिल गागून साहिर के अंजाम पर बहुत खुश थी और मुतमईन भी। इसकी आतिश इंतकाम अब सर्द हो चुकी थी। फिर उसने बड़ी मोहब्बत से मेरा हाथ थाम लिया और उसे दीवानावार चूमने लगी। मैंने अपना हाथ खींचा तो मुझसे लिपट गई। उसके पुरशबाब और नीम उरिया बदन की महक ने मेरे हवास मुख्मिल करना शुरू कर दिए। वो शायद अपने हुस्न शबाब का इनाम मुझे देना चाहती थी, मगर मैंने बड़ी मुश्किलों से खुद को संभाला और उसे बढ़कर नरमी के साथ खुद से अलग कर दिया। इसके बाद उसका गाल थपथपाकर मैं आगे बढ़ गया। आगरूब के कबीले पहुंचा तो क्या देखता हूं कि वहां जश्न का समा था। उनके सर अब उनके धड़ों पर नजर आने लगे थे। आगरूब को मैंने उसके लिबास से पहचाना था। वो एक खूबरू शख्स था। वो सब मेरे शुक्रगुजार थे। फिर मैंने आगरूब से जगदोश के बारे में मदद चाही, अगरचे उसने पहले ही बता दिया था कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानता। अलबत्ता उसने इस पुरस्कार खंडर के बारे में सिर्फ इतना बताया कि ऐसा खंडर जुनूब की सिंध पर वाक़े तो है, मगर ये इल्म न था कि आया ये जगदोश की वही बदनगरी है जहां उसने सोनी को कैद रखा है। ताहम मैं उसका शुक्रिया अदा करके निकल खड़ा हुआ। उसने मुझे बताया कि मुझे रास्ते में एक नीले पानियों का समंदर पार करना पड़ेगा। मस्कूरा सिंध पर रवाना होने के लिए मुझे साहिली जंगलात से कोई टूटा हुआ शहतीर भी मिल जाएगा। नीज समंदर ज्यादा तवील ना होगा। हर दौर में अपने सफर पर रवाना हो गया। 2 दिनों और 1 रात की मुसाफत के बाद मैं बिला आखिर इस नीलगू पानी वाले समंदर के साहिल पर खड़ा था। मेरे उक़ुब में घना जंगल और सामने सरकश मौजों का समंदर था। आगरूब का कहा दुरुस्त साबित हुआ था। यहाँ मुतादिद टूटे हुए दरख्तों के शहतीर जा बजा बिखरे हुए थे। मैं पहले ही सफर की थकान से निढाल हो चुका था और रात भी होने लगी थी। जैसा कि मज़कूर हो चुका था कि पाताल की इस नादीदा दुनिया में दिन का समा बहुत थोड़ा और रात का अरसा तवील होता था, इसलिए अब अंधेरा चारसू फैलने लगा। मैंने यही फैसला किया कि अब दिन की रोशनी होते ही किसी शहतीर को पानी में रखने के बाद ही अपने अगले समंदरी सफर पर रवाना होने की कोशिश करूं। चुनांचे ये सोचकर मैं वहीं साहिली रेत पर बैठ गया।
اغروب نے یہ مہربانی کی تھی کہ سفر پر روانہ ہوتے وقت مجھے کھال سے بنی ایک بگچی ساتھ کر دی تھی، جس میں خشک بنے ہوئے گوشت کے پارچوں کے علاوہ رسدار پھل اور پانی کی چھاگل تھی۔ میں وہ بگچی کھول کر کھانے پینے میں مصروف ہو گیا۔ رات کا تاریک سناٹا چار سو پھیل چکا تھا، ساحل ویران تھا اور عقب میں جنگل خوفناک تاثر دے رہا تھا۔ دب بخود ماحول پر آسیبی ویرانیوں کا راج تھا۔ ان ہیبتناک سناٹوں اور ویرانیوں کو دیکھ کر مجھے ذرا سا خوف محسوس ہونے لگا تھا، اسی لیے میں یہی دعا مانگ رہا تھا کہ جلدی سے دن کی روشنی کا آغاز ہو تو میں شہتیر پر سوار ہو کر اپنے سمندری سفر پر جلد از جلد نکل جاؤں۔ میں نے اس مقصد کے لیے ایک بڑے شہتیر کا بھی انتخاب کر لیا تھا اور ذرا دیر سستانے کے بعد میں اسے جنگل سے بڑی مشکلوں کے ساتھ گھسیٹتا ہوا ساحل کے قریب لے آیا تھا۔ حالانکہ میں کافی تھک چکا تھا، لیکن دل میں ابھرنے والے انجانے خوف کی وجہ سے مجھے نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ تاہم میں وہیں ریت پر ہی لیٹ گیا اور سونے کی کوششیں کرنے لگا۔ ماحول پر ویسا ہی رقت انگیز اور ٹھٹکا دینے والا سما طاری تھا، پر نیند تو سولی پر بھی آ جاتی ہے کہ مستاق جانے کس پہر میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گیا۔